6 महीने तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद एक 38 वर्षीय लकवाग्रस्त मरीज ने फिर से अपने दम पर सांस लेना शुरू कर दिया। गंभीर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण उसकी सांस लेने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, लेकिन मुंबई के वॉक हार्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एडवांस फेनिक नर्व स्टिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल कर उसकी डायफ्रामा को दोबारा सक्रिय किया। सिर्फ कुछ ही दिनों में सुधार दिखने लगा और कुछ हफ्तों बाद मरीज वेंटिलेटर से मुक्त हो गया। आज वह न केवल स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहा है, बल्कि अपने परिवार से बात कर रहा है और फिर से गाना भी गा रहा है। यह सफलता गंभीर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीज के लिए नई उम्मीद की सांस लेकर आई है। A very good afternoon to all. And my name is Divya, and my husband is Usha Kiran, who is working in Abu Dhabi. And when he's going back to his work, he met with a severe road accident at Hyderabad on ORR. So since then, on October 23rd, 2025, it's been 7 months. So that traumatic incident entirely changed our lives, and the, immediately he was rushed to the nearby hospital in Hyderabad itself, and we were there in the hospital for 3 months in ICU. And immediately the cervical surgery was done, C5, and the doctors fixed that thing. But after 15 days, he was suffering with the breathing difficulties. So when he started suffering, there is no other option to go with. So he was ventilated and tracheostomized on the same day. And since then, uh, till we reach here, he was tracheostomized and completely on the ventilator. So he is not able to take breath on his own. And so many challenges, critical challenges we have faced all these 7 months. Whatever the we have gone through everything Valia sir said now, and the family we are suffering a lot, and we were told that he has to be ventilated for lifelong because the entire body is completely paralyzed. The body is not supporting to take the breath. So we were in a situation like what step we have to take. We are only the thing left with us is silent prayers, tears, and fears. We have no other option to go. No one has told that there is a treatment which he can take his breath on his own. So we have been to so many hospitals also in our native place, and through the doctor, we got acquainted with the Dr. Manish Balia sir in the month of January. So sir said that there is a treatment. He can take breath on his own. So at the time, before that, we have never heard that thing. We were told that he has to be on the ventilator for his lifetime. In this young age, 38 years old, how can we deal as a family? Our son is just 5 years old. We are spending so much, and how long we can take this? We don't know what it is. So when we had a talk with the Dr. Manish Balya sir, when we are in the midst of the storms, sir appeared as a ray of hope for us in our darkest phases of life when we are going through. Sir said that you come to Mumbai, I will be there with you. I will support you, and I will help you out to come him out of the situation. He encouraged us, and even after meeting him, we took 2 months time to take the decision because this type of surgery we never heard before, and we didn't get such confidence to take the big decision. And it is also an expensive and very advanced surgery. And one fine day, we took a bold decision to come to Mumbai, which we haven't been before here. And this 2 months in the stay in Wockhardt Hospital, Mumbai, this is a very comfortable stay. The hospital also provided us, and with the relentless effort of the doctor Manish Balia sir and his team, now my husband is was decannulated and he's taking breath on his own. After 7 months of his struggle, now we are like in a
happy mood, and we are going back to our native place for the advanced physiotherapy, and we are going to spend some quality time with our family also, because all these months he was in the ICU only. My everyone, my family, relatives, everyone supported us in the back end. Now we are going back to spend some good time with our family. Thank you all. Yeah. So you have a 6-year-old son, right? Yes, sir. And he wanted to see his dad, right? Yes, sir. So when he is going to see? So when we go back to our native place, he will be coming, and so in the previous hospital when he is in ICU, like he is asking every time, I want to go to the ICU, I want to meet dad. He is asking, but the norms will not allow the kids to go inside. So we cannot answer his questions, what his dad is going through. That was really a tough time for us. We cannot say him exactly what has happened, and we cannot how to console him also, we don't know. And now mm, he last month, in the month of April, he came here to the Hyderabad, to the Mumbai. When my husband got shifted to the ward, he met him, and he's very happy, and he is also supporting us, a little heart supporting us in this journey. Good, good. I have a last question. Last question. Yes, sir. Tell me about the experience of Bokar Hospital, Mumbai Center. Wockhardt Hospital, as I said already, this is a good stay, and Sir and his team supported us very well, and we had a comfortable stay here. And we were from Hyderabad, and we already know that we have to be here for 2 months. So hospital gave us the accommodation facility also, showed us the accommodation also, and we are happy with the services provided by the hospital. Thank you. Thank you about your expression. Your son now is happy. The patient is my son. He is Usha Karen. He's working as in Abu Dhabi. He's on leave. My girl Bapatra आएगा. He am return to flight का चलेगा. At the time suddenly accident at the disorder. Now then 3 o'clock. At the time I will go to the receiving and to the Apollo hospital. At the suddenly emergency room to treatment है. Then time the doctor was told one conference operation का theater का बोलेगा. 98.7% is not in my hand. That is God is great. That I am very suffering. My son is very difficult facing on at the time. Every day is very suffering and sweeping and weeping, and every day is every morning, every evening, every night, every time is a disorder in my life. This is the first time. This is the first time in my life. Only the financial problem is some problem, and mentally problem is some, and this is the health problem. Is my son is very difficult facing every day I have seen, but now I am very different facing my eye. My daughter is very. Don't worry, uncle. I am. God is great. God is seeing everything. I am so happy. That is very happy, very fight facing with my husband. It's really the great thing. Is my daughter. He's very now he is 77 months. 7 months. 7 months ago, is great thing is working with the husband. I am only within 2 months up to handle his wife. It's a very great thing. Is now I have not seen this situation. Is now I am very happy.
something happy. Not fully. The body is disorder. The urine is disorder. Now is then only breathing is working. It is okay. So much problems of the money is very expensive. Money. I am no rich people, but I am a very poor people. My daughter is taking everything. Huh? Yes, ma'am. So tell me about your experience. जैसे डॉक्टर वीरेंद्र जी ने बताया कि फंक्शनल न्यूरोसर्जरी इज अगेन सब स्पेशलिटी न्यूरोसर्जरी। तो हम एक्चुअली जनरल बॉडी फंक्शंस जो होते हैं उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन डिवाइसेस टेक्नोलॉजी और बाय मॉड्यूलेटिंग द ब्रेन सर्किट्स। तो ब्रेन में जो सर्किट होता है उसी से पूरा बॉडी फंक्शन होता है, और उस सर्किट में जब कुछ खराबी आ जाती है तो हमें माइक्रो लेवल, उस सर्किट लेवल पे काम करके उस फंक्शन को रिस्टोर करना होता है। तो ये सारे सर्जरीज छोटे ही छेद बना के उस सर्किट को हम ठीक करते हैं। किसी में इम्प्लांट डलता है, किसी में इम्प्लांट नहीं डलता है, लेकिन हम वापस उस पेशेंट को अपने काम पे जाए, इंडिपेंडेंटली रहे, वैसे हम बना के देते हैं। तो इसीलिए इस ब्रांच को बोलते हैं फंक्शनल न्यूरोसर्जरी। तो इसमें कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया, या फिर पेशाब कंट्रोल नहीं है, या फिर भयंकर दर्द हो रहा है बॉडी में, बहुत सर्जरीज हो गई फिर भी पेन नहीं जा रहा है, या फिर आपको ट्रेमर्स है, पार्किंसंस है, कोरिया है, ऐसे हाथ पैर अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे कई डिसऑर्डर्स, बीमारियां हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फाइनली इस टेक्नोलॉजी सर्किट मॉड्यूलेशन से अभी हम टोटली इसको क्योर कर सकते हैं, इसको मॉड्यूलेट करके उनके फंक्शंस वापस ला सकते हैं, और चाहे उनका मेजर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर मेजर बीमारी हो, कैसे भी करके हम वो फंक्शंस वापस लाते हैं और उनको काम पे जाए जैसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द फंक्शनल न्यूरोसर्जरी। नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक ऑन फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेशन, कि ये क्या है ये प्रोसीजर। तो हम सब एक अनकॉन्शियसली जो चीज़ करते हैं वो है सांस लेना। मतलब हमें पता भी नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं, और दिन में 20,000 बार हम वो काम कर रहे हैं, 20,000 बार, फिर भी हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन जब वो सांस रुक जाती है या फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उस सांस के लिए कोई मशीन के ऊपर, तब भी हमें एहसास होता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। तो जीने के लिए सबसे पहले सांस की ज़रूरत होती है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या फिर कहीं से गिर जाते हैं जब मरीज़, या फिर कोई हॉर्स राइडिंग से या फिर सिंपल चलते चलते फॉल हो जाता है, तो उसमें सर्विकल कॉर्ड स्पाइन इंजरी होती है। तो क्या होता है उसमें कि ब्रेन एक्चुअली निचले के हिस्से के बहुत शरीर से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ब्रेन ही एक्चुअली पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है निचले के शरीर से, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नीचे पहुंचता ही नहीं। तो वो मरीज ना तो हाथ पैर हिला पाता है, ना सांस ले पाता है, ना ही उसका यूरिन कंट्रोल रहता है, ना ही उसको कुछ सेंस फील होता है। अगर कोई उसे छुरी से भी मार दे तो भी उसको कोई एहसास ही नहीं होगा कि किसी ने छुरी घुसाई है। तो कोई सेंसस नहीं है, क्योंकि पूरा ब्रेन डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो वैसे मरीज के लिए एक जीने का एहसास ही पूरा चला जाता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, जब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, ना मैं बोल पा रहा हूँ, किसी से कुछ चाहिए तो बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसी ज़िंदगी क्यों है। तो वो लोग एक्चुअली यूथनेशिया के लिए डिमांड करते हैं। अगर हम उनको एटलीस्ट सांस दे दें, जो उनका हॉस्पिटल का खर्चा है, आईसीयू का खर्चा है, उससे रिलीफ मिल जाए, तब भी उनमें बहुत बड़ी एक जीने की उम्मीद जाग जाती है, और तभी वो एडवांस रिहैबिलिटेशन थेरेपी या फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। जब तक वो वेंटिलेटर पे है, जब तक वो आईसीयू में है, ना तो वो किसी घर वालों से, सारे घर वालों से मिल सकते हैं, ना ही वो काम पे जा सकते हैं, ना ही वही कोई कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिसेबल लाइफ हो जाती है उनकी पूरी, वो एंड दिस इज़ फॉर एंटायर लाइफ। एंड द अमाउंट ऑफ ये फाइनेंशियल बर्डन जो है फैमिली के ऊपर बहुत ही इमेंस रहता है।
तो इमेजिन कि पूरी ज़िंदगी आपको आईसीयू में बितानी है और कितना खर्चा आएगा, पर डे का आईसीयू चार्ज कितना ज़्यादा होता है। सो सच सीरियस कंडीशन दिस पेशेंट्स आर, मतलब जब ब्रेन पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है निचले हिस्से से, तो इतना सीरियस कंडीशन में वो लोग रहते हैं। तो वैसे ही मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा जो रियल लाइफ में हुए हैं अपने कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ। बट आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला और थोड़ा सा सब्र रखा हमारे लिए। आप ये स्लाइड देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड दिख रही है, बट इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है। सो उसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया। बेसिकली ये रिमार्केबल न्यूरो रिहैबिलिटेशन सक्सेस स्टोरी है, जिसके बारे में हमें आपको एक्सप्लेन करना था कि ये क्या चल रहा है। बेसिकली इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बात करूँगा, इसके आगे मैं हमारे जो सेंटर हेड है डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, वो इसके ऊपर बात करेंगे कि अबाउट व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली। उसके बाद डॉक्टर मनीष बाल्दिया जी है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली। सो सर प्लीज़। So good afternoon everyone. Thank you so much for coming and spending your afternoon with us. I would like to begin with saying that why we have decided to involve the media and the press for this particular stuff. There are many surgeries which is currently available across the world, be it a joint replacement surgery, there are neurosurgeries, cardiac surgeries, but this is something which is very novel and innovative also. I need that this particular treatment reaches out to a maximum number of people. We are working in that healthcare and we get an opportunity to see the miracles, what we call, day in and day out. बट बहुत कम जगह पे होते हैं वहाँ पे जहाँ पे आके हम देखते हैं कि पेशेंट्स की लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा होता है। जस्ट इमेजिन एक दिन सुबह उठ के कोई अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है, समवन हु मेट्स विथ एन एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट में आने की वजह से उनको बेड रिडन होना पड़ता है या उनको अंडर न्यूरो सर्जरी जाना पड़ता है, और उसके बाद उनको ये रियलाइजेशन होता है कि फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि आपको यू वोंट बी एबल टू इवन ब्रीद ऑन योर ओन, और आपको वेंटिलेटर सपोर्ट के ऊपर रेस्ट ऑफ योर लाइफ रहना पड़ता है। किसी भी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए ये मैसेज आना बहुत ही शॉकिंग हो जाता है जब आपको पता चले कि कोई एक ह्यूमन नॉर्मली अपने ऑफिस में जा रहा होता है और इस तरीके की कोई चीज़ हो जाए। और कहीं किसी ने ये सोचा नहीं होता है कि जहाँ पे आपको एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से जब ये लेवल का इंफॉर्मेशन मिल जाता है that there is no treatment available, and then somebody comes and give you the hope that no, for this particular procedure, for this particular condition we have a procedure available. और वो प्रोसीजर क्या है वो चीज़ बताने के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया हुआ है। एट वोकहार्ट हॉस्पिटल्स आई थिंक पिछले एक साल के अंदर में हम देखेंगे तो हमने 40-45 से भी ज़्यादा ये सर्जरीज़ किए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन सर्जरीज़ होती है। ये वो लेवल की सर्जरीज़ होते हैं वहाँ जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ करते आना होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इसके लिए एक वेल डिफाइंड टीम होना ज़रूरी होता है जहाँ पे फंक्शनल न्यूरोसर्जन, वी आर वेरी thankful and grateful to have Dr. Manish Baldia with us. Once he'll take you through the slide, you will be able to understand एक functional न्यूरोसर्जन होते हैं उनका रोल क्या होता है। आप सब लोगों ने न्यूरोसर्जरी या न्यूरोसर्जन के बारे में सुना होगा। He'll be able to explain you more about what is a functional neurosurgeon and what is his role also. Dr. Manish Baldia exclusively deal with neuromodulation surgeries. Phrenic now स्टिमुलेशन जो सर्जरीज यहाँ पे हुआ है ये मुंबई का फर्स्ट एवर सर्जरी है जो हमारे यहाँ ये प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। एंड फ्रेनिक एंड सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन का आई थिंक ये इंडिया का फर्स्ट केस होगा जो हमने एक सिंगल सिटिंग में ये प्रोसीजर किया हुआ है। वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू नो दिस थिंग एंड
इसका कितना कमिटेड और अच्छा आउटकम होता है वो बताने के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया गया है. Our patient has stayed with us for 60 days. If everything works out well, most probably by end of this month, 31st तक वो यहाँ से चले भी जाएंगे. ये ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारा ये पेशेंट हैदराबाद से मुंबई ट्रैवल करके आया हुआ है. अगेन वन मोर रीज़न फॉर अस टू कॉल you guys so that you can go out and inform others also. Otherwise there may be at least hundreds of patients currently sitting there in some part of the country. 2 महीने 3 महीने 4 महीने से शायद सो रहे होंगे विदाउट नोइंग कि ऐसी एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है जो मुंबई के अंदर में एक हॉस्पिटल में हो रही है. और हमने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है वोकार्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में, जहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम होती है जो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के ऊपर काम करती है. So without taking much of your time, I'll request Dr. Manish to take us through the case and maybe give more detail about the procedure as well. Thank you. बहुत एक सफल ऑपरेशन हुआ है. जो मुंबई के बाहर से पेशेंट आए हुए थे उनके बारे में जरा बताइए. अब काफी रिलैक्स मूड में लग रहे हैं. अभी हमने उनकी बात सुनी, काफी अच्छा उनको फील हो रहा है. क्या उन्हें हुआ था और कैसे आपके पास आए ऑपरेशन के बाद? अब कैसे? वर्किंग इन दी हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ हम थैंकफुली हमको बहुत सारे गुड न्यूज़ और काफ़ी सारे मिरेकल्स हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पेशेंट्स जो एक कंडीशन से आया है वहाँ से इम्प्रूव होके बाहर जाता है. बहुत कम टाइम होता है जहाँ पे हम ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं हु हैज ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद और वो एक उम्मीद और होप के साथ आते हैं एंड देन एक लेवल का सेटिस्फेक्शन लेके वापस जाते हैं. न्यूरो मॉड्यूलेशन सर्जरी के काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं. ये जो पेशेंट आया हुआ है वो मेरे हिसाब से मुंबई का फर्स्ट फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेशन सर्जरी है और इंडिया का फर्स्ट फ्रेनिक एंड सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन सर्जरी है. ये जो पेशेंट है उनका 38 ईयर ओल्ड उनकी एज है. एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा हुआ था और इनकी वजह से उनका बिलो नेक जो भी पार्ट है वो पैरालाइज कंडीशन में चला गया था, जहाँ से बॉडी में कोई भी सेंसेशन या फीलिंग पेशेंट्स को होती नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है ब्रीदिंग. जब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आ जाती है तो वो बहुत ही ह्यूमन का बेसिक एक फंक्शनिंग होता है कि जिसकी वजह से बाकी के ऑर्गन्स को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू दे सकते हैं. डॉक्टर मनीष बाल्दिया हमारे साथ एसोसिएटेड है एज अ सीनियर फंक्शनल न्यूरोसर्जन. फंक्शनल न्यूरोसर्जरी के बारे में थोड़ा डिटेल सर बताएंगे. ये पेशेंट हमारे साथ ऑलमोस्ट 60 डेज से रह रहा है. 60 डेज कंप्लीट हुए हैं. जिस तरीके से चीज़ें चल रही है मोस्टली बाय एंड ऑफ दिस वीक बाय 30th ऑफ मई हम ये पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे. पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर थे जब हमारे यहाँ शिफ्ट किए गए थे. जब वो वापस यहाँ से हैदराबाद वापस जा रहे हैं तो वेंटिलेटर से निकाल दिए गए हैं. ही इज़ एबल टू ब्रीथ ऑन हिज ओन. जहाँ पे आए थे तब पेशेंट का ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ था. अब वो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब निकाल दिया गया है. ही कैन ब्रीथ ऑन हिज ओन, ही कैन ईट ऑन हिज ओन, ही कैन स्पीक ऑन हिज ओन. मुझे ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज हम सब हेल्दी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये कोई चीज़ें जो हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है हमारे पास उसका इतना इम्पोर्टेंस हम समझ नहीं पाते हैं. हमको लगता है ब्रीदिंग नॉर्मल है, खाना नॉर्मल है, बात करना नॉर्मल है. यू शुड कम हियर एंड लुक एंड टॉक टू द पेशेंट और आपको समझ में आता है कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ द पेशेंट्स टू ब्रीद ऑन देन ओन. तो जब ये लेवल की अचीवमेंट होता है तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके मीडियम के थ्रू हम मैक्सिमम लोगों को ये बात पहुंचा सके कि ये लेवल की ट्रीटमेंट है जो वोकार्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है. हमारे एक लेवल की जो सिस्टम अवेलेबल हो जाए या हम उसका इकोसिस्टम जो बताए, जो डॉक्टर्स की अवेलेबल होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, जो टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है, वो हमने यहाँ पे वोकार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में वो अवेलेबल करवा के रखा हुआ है. और इसकी वजह से हम पेशेंट को एक लेवल के अच्छे जो आउटकम होते हैं वो दिखा सकते हैं. ये पेशेंट सिर्फ ब्रीदिंग और बोलना ही अपने लेवल पे चालू नहीं किया है. वी आर वेरी मच होपफुल एंड पॉजिटिव कि बाकी की भी जो सारी जो मूवमेंट्स है जो उनके रिस्ट्रिक्टेड है वो गोइंग अहेड वो सारी चीजें भी हम एक लेवल पे इम्प्रूव कर जाएंगे.
थैंक यू। डॉक्टर महेश पाल जी, क्या कहेंगे आप? आज जो पेशेंट आए थे, आप काफी रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं। अभी उन्होंने मीडिया के साथ में बातचीत की, उसके बाद गाना भी उन्होंने गुनगुनाया, कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है ये रिजल्ट देख के, क्योंकि मुझे पता है कि ये फैमिली कितनी डिफ़िकल्टी से गई है। एंड हर एक पल हमने मतलब हैदराबाद से जो पहली बार जब ये लोग आए थे मेरे पास, तब कितने टेंस दिखे थे इनके फैमिली मेम्बर्स, और चेहरे पे कई होप्स नहीं दिख रहे थे। और उनका जो फाइनेंशियल बर्डन और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा कि नहीं, मतलब दे शुड मतलब बेनिफिट विद द टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल। प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि अभी वेंटिलेटर से हम निकल सकते हैं बाहर, वेंटिलेटर से बाहर निकलने का उपाय है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। इवन मेडिकल फैकल्टी में भी डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम है कि ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि अभी इनको ज़िंदगी भर वेंटिलेटर पे ही रहना पड़ेगा, या ये खुद अपने आप कभी सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो इसमें सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही नहीं, मतलब कई और बीमारियां हैं जिससे वजह से मरीज वेंटिलेटर के ऊपर रहता है, और उन कई सारी बीमारियों में हम ये ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, और उन सारे मरीजों में इसका फ़ायदा होगा। तो एक बार मतलब पेशेंट जब वेंटिलेटर से बाहर निकल जाए तो उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कम हो जाता है, फैमिली मेम्बर जो अर्निंग होते हैं उनका इनकम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आईसीयू में स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस प्रोसीजर से। सर, ऐसे केसों में कितने % तक चांसेस रहते हैं कि जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी? क्या कुछ एज का भी लिमिट रहता है कि जल्दी रिकवर हो? जैसे हाँ। भी आपके पेशेंट है 38 एज है, हाँ, अगर ज्यादा एज के पेशेंट रहेंगे तो एज उनका आफ्टर ऑपरेशन के बाद रिकवरी रेट कैसा है? तो जो उम्र में बड़े होते हैं, 60 प्लस होते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। और फिर होश में कितने हैं पेशेंट, कोई कोई पेशेंट कोमा में रहते हैं तो वो और भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। जो पेशेंट यंग है, जो पूरे होश में है, तो उनको हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि सांस लेना है, आपको थोड़ा कॉन्शियसली आपको सांस लेना है, खींचना है, तो वो लोग अच्छा एफर्ट डाल पाते हैं। तो वैसे पेशेंट में तो हम 1 महीने में उनको मतलब 3 सप्ताह में वेंटिलेटर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो एजेड है, जो कोमा में, उनको 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आते हैं बाहर, वेंटिलेटर से बाहर निकलते हैं। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके जरिए आप अभी अपने पेशेंट का उपचार किए हैं, अपने हॉस्पिटल में आपके यहाँ उपलब्ध है, इसके बारे में क्या दर्शकों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे? जो लोग हैं जिनको जरूरत है ऐसे ऑपरेशन की, उनके पास जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से क्या अपील करें? तो आपके माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई नोन टू या फिर रिश्तेदार ऐसी कोई बीमारी से सफ़र हो रहा है, सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी या फिर हेड इंजरी या फिर ब्रेन स्टेम स्ट्रोक की वजह से या फिर ALS की वजह से, तो ऐसे कंडीशंस में वो लोग वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उनको आपको एक चांस देना चाहिए ये सर्जरी के माध्यम से। तो मतलब उम्मीद है 90% चांस है कि वो वेंटिलेटर से ऑलमोस्ट निकल पाएंगे। एक क्वेश्चन और भी था, इनके रिलेटिव फैमिली मेंबर है, इनका लड़का भी है, तो वो इमोशंस कैसे हैं? हाँ, तो फैमिली मतलब जब हेड ऑफ द फैमिली जब वेंटिलेटर डिपेंडेंट या कोई मेन सदस्य ऑफ द फैमिली वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाता है, या इधर ऑफ द पेरेंट्स, तो जो ये असर फैमिली बच्चों पे भी गिरता है। इवन बच्चे भी चाहते हैं कि वो उनके साथ रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनके साथ खेले, लेकिन वेंटिलेटर के पास होने की वजह से क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स उनको पेशेंट के नज़दीक आने नहीं देते हैं, क्योंकि एक मशीन चल रही है जो हवा दे रही है, और बच्चे हैं तो कुछ भी मस्ती कर सकते हैं या फिर उससे खेल सकते हैं, तो उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से बच्चों को भी वो लोग दूर रखते हैं, हॉस्पिटल्स में भी बच्चों को आने नहीं देते हैं, तो कई महीनों तक मतलब अपने माता या पिता को देख ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे की साइकोलॉजी पे भी काफ़ी असर पड़ता है जब एक
वन ऑफ द पेरेंट आईसीयू में इतने महीनों से रहता हूँ। लेकिन इस सर्जरी से वापस वो लोग कम्प्लीटली वेंटिलेटर फ्री होके वापस घर जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो फैमिली में इंटरनली दिखते हैं, लेकिन बाहर ट्रीटमेंट पार्ट जब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ये सब डिस्कस करते हैं तो ये सब लाभ में मतलब बेनिफिट्स में नहीं डिस्कस किया जाता। बट दीज आर द ग्रेट बेनिफिट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे हैं जो हर एक फैमिली को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ।